Hi, hello, namaste to all my listeners. I'm your host Sarthak Varshne, and I welcome you all to the Balls of Steel show, where you get an insight into the business mindset of the entrepreneurs. Dhandoni Soch. Our today's guest is Mr. Rahul Nain. Hi Rahul, Hi brother. कैसे हो आप? All बढ़िया बढ़िया. That's great, that's great. So, Rahul, tell me, what is the business that you're doing because of which we're gonna say that you've got the balls of steel? Okay. We actually running a startup right now at Renting Planet. Renting Planet is just Mm-hmm. solving a problem for rentals, the professional and even the individual. Means if you even in the college and around you, you seen the people are not capable to buying all the needy things. Sometimes you need a Mm-hmm. particular thing only for a short period of time. So what we Right. just come up with an idea means let's solve this problem. So instead of owing based economy, we try to convert Mm. it into rental based economy, or you maybe say a shared based economy among the people. Okay. 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 That's a nice idea. So if I ask like how are you different from other people who are trying to do the similar business? Actually, we just focusing from the people on ground. ये आइडिया बेसिकली मीन्स आप गांव में देखते हो कभी आप इंडिया के ट्रेडिशनल में तो वहाँ पे जो Hmm. पीपल्स होते हैं वे आपस में शेयर करते हैं थिंग्स को लेकिन आप जब सिटी में आते हो वो चीज़ वहाँ पर नहीं रहती तो हाँ जी। तो इस चीज़ को हमने गैप करने के लिए कि एक जो स्टार्टिंग मीन्स इवन जो कैमरा रेंटल है या स्कूटी रेंटल है चाहे वो बिल्डिंग हाँ रेंटल जी। वाला हो या चाहे वो सेल करना चाहता हो इवन कुछ भी हो आपके पास चाहे एक लैपटॉप हो जो आप काम नहीं करते हो मीन्स इवन यू सार्थक यू हैविंग योर स्टूडियो तो ये ऐसा तो है नहीं राइट। कि आप डेली यूज करते हो उसको 6 7 8 8 घंटे हाँ जी। so you can put it on हाँ जी। rent even on our platform. It help you even earning more money. Even the even is scooty rental, even you हाँ जी। people like you. राइट। वाओ यार, that's a great idea. Then I would say कि आप हर चीज रेंट करवा रहे हो Yeah. in that case. Even the sellable, you can even sell That's your product. It's up to you. okay. 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 That's nice. Yeah, that's really nice. So, Rahul, let's talk about your journey. Okay. Okay. And dive deep into your journey. So, why don't you tell me everything about this small journey of yours from the very starting to the current point at which you are right now? Okay. So firstly, I would like to mention about my means schooling and all. Just to overview. Uh, I हाँ जी, basically belongs to Meerut. It's in UP, Uttar Pradesh. But as my father हाँ serving जी, in a BSF, one border security force, so we got it posting to the right, Udhampur district, Udhampur. It's in Jammu and Kashmir. okay, So I completed my schooling right, from out there, Army Public School. Then during my schools, when I come to in 11th and 12th standard, I just thinking about the means ideas and this mindset about hmm, business. I start growing up out there only. Then I after completing my 12th standard, I decide to go pursue my engineering from one of engineering college in Chennai, SRM University. right, Maybe you heard about it. right, And right, second thing which I would like to mention, basically जो people means बाहर आने नहीं देते या शेयर नहीं करते जो इसके बीच में जो कठिनाई हाँ आती जी, है आपको वो कभी एक उस मुकाम पे पहुंच के कोई शेयर नहीं करता जो कि बहुत जरूरी है तो मैं वो चीज़ हाँ आपके जी, सामने शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि वैसे तो एंटरप्रेन्योर बिल्कुल, जर्नी आई स्टार्टेड फ्रॉम माय फर्स्ट ईयर बट व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर ओके, so till my हाँ third जी, year I built around 2 to 3 startups all are failed. ओके, Parallelly, I even applied for the Bachelor ओके, of Entrepreneurship to University of California. Even they also rejected me, ओके, and even in the academic year, ओके, I'm not too good. I even got the area out there. राइट, Especially if you not get the राइट, area, you're not an engineer, definitely. That's my point of view. That's a one needy thing you राइट, should राइट, have. राइट, So राइट,
Even my startup having my own team, so we all putting out so much of effort, but one by one, means my college I got the area, even the startup I failed, even the I rejected by the University of California. So these all Hmm. thing, all failures coming by one within 1 month in my life. And even Right. this pressure on me, it's even tends to me to go even just thinking about the suicide, about suicide. Okay. But I have Okay. to cope up somehow. I have to proceed because Huh. suicide is not an option for no one. Right. So Right. I try to change my routines, my daily routine. I start doing exercise on daily basis, and I took around Uh-huh. 1 week rest, and means to calm down myself. And then Huh. means this thing, then after 2 days, after 1 week and plus 2 days, I start working on another project. While that project doing that same project, one person sitting in the Dubai as observing me from the last 2 years, Uh, the founder of the Renting Planet, actually the main founder. He just observing me okay. that I'm keep trying and failing, and again I trying around the 3 or 4 startup I founded, and I Okay. failed all. Then he just one day at Right. night he just called me up, and I just randomly picked up the call. And then he said, "Would you like to work with us as a Uh, co-founder?" Then I be like, "Why not?" uh, So after taking the means 2 or 3 days of interviews, then they hmm. shared their ideas and all where the progress reached. Finally, they decided to work with me, and even I'm so thankful to Omkar Bansal, the main founder of the Renting Planet. Right. Okay. So this is your journey till Yeah, now. yeah. छोटी जर्नी है आपकी, I would say, कह सकते but हो लेकिन interesting है. हाँ वही प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर किस बात का है? प्रेशर तो उस टाइम आता है, मीन्स जब आप एक साथ साथ मीन्स फेल होते जाते हो, तो वो चीज आपकी कोई नहीं देखता, आपको रिजल्ट देखता है आपका। तो पीपल भी आपको सामने से गैस करना स्टार्ट हम्म. कर देते हैं कि भी लाइक ये तो चूतिया है, साला स्टार्ट करता फेल हो हम्म. जाता है। तो वही चीज है राइट. तो। ओके. ओके. यार आपकी बातें सुन के मुझे और बातें करने का मन कर रहा है इसके इस बिहाफ पे, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे बात करते करते मतलब एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर जो बनने की कोशिश करता है, एक स्टूडेंट अपने कॉलेज लाइफ में, हम्म। एंड एक ऐसा बंदा है मुझसे जो बहुत बार फेल हो रहा है, तो मुझे आपके फेलियर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, एंड प्रोबेबली जो हमारे लिसनर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ आपके फेलियर्स से, एंड जितनी भी मेहनत आपने करी है अब तक यहाँ या तक पहुँचने के लिए, या एंड जो आप आगे कर रहे हो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो मैं उसी उम्मीद के साथ लाइक आई गॉट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, ओके राइट? ओके एंड आई वांना आस्क यू द क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके सो ओके गो अहेड। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि यार आपने बताया कि आप मेरठ से हो, एंड आपके फादर बीएसएफ में है, हम्म। एंड आप आर्मी पब्लिक स्कूल से पास आउट किए थे, एंड आपका जो मेजर इंटरेस्ट था दैट वो बिजनेस साइड में, या वो आपकी 11th 12th में आपने पढ़ना लिखना शुरू किया एंड वो जी जी। सब किया। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड में कहीं कोई और बिजनेस साइड में, आपके मदर साइड या फादर साइड में नो कोई और नो नो बिजनेस नो करता है, एक्चुअली इवन या माय फिर आपको खुद से इंटरेस्ट आया पूरा पूरा? एक्चुअली पहले एक बार बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि जब कोई न्यूज़ चैनल आपको एक स्टार्टअप जर्नी आपको टीवी पर दिखा दे, तो मैंने एक्चुअली उस टाइम वो देखी थी, इसमें ओला और ओयो, रितेश अग्रवाल सर और ओयो की कहानी देखी थी randomly. I was in हाँ 11th, जी. so हाँ जी. I just get means yeah, what this startup and the entrepreneurship. I even don't know its spelling. First of all, I just Google out its spelling. What is entrepreneurship? हाँ. So after that, if someone asks me what you want to become, then I be like entrepreneurship always. तो फिर वहीं से मैंने थोड़ा थोड़ा हाँ. सीखना स्टार्ट किया।
तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि होता कैसे है। हाँ तो बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने सुना यार हर हाँ कोई जी। स्टार्टअप देखो तो साला साउथ में खुलता है, चेन्नई, बैंगलोर, पुणे। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू go pursue engineering राइट। from south only. Then I hopefully got ओके, the तो बैंगलोर क्यों admission. नहीं गए फिर आप? क्या? Bangalore? क्या बैंगलोर क्यों नहीं गए थे? हाँ जी। Okay, okay. Even I got the scholarship in actually in SRM of 4 lakhs, which is हाँ matters हाँ। at that time to our family. स्कॉलरशिप मिल राइट गई राइट थी, राइट। ब्रांच भी अच्छी मिल गई थी इवन आईटी की। तो आईटी इट्स लाइक फर्क हाँ नहीं जी। पड़ता है, आप घर बैठे आराम से मतलब कि निकाल सकते हो कॉलेज में हॉस्टल में बैठे बैठे। Even today's, I need hostel, not college. I prefer hostel only. Take my means tuition fees ओके for hostel. ओके। I will okay with that. ओके, तो मतलब आपने पहली बार टीवी पे ओयो और ओला की स्टोरी देखी, आपने हाँ, रितेश की स्टोरी देखी और एंड जो कि दैट इज व्हाट या इंस्पायर्ड यू। इवन ये बहुत ही रेयर चांस होता है कि आज के न्यूज चैनल पे आपको ये चीज देखने को मिल जाए। Even like you doing a very हाँ great वैसे। job, literally, thanks to literally by my heart, you sharing the stories of startups and founders, जो बहुत लोग बहुत कम लोग करते हैं actually. थैंक यू, थैंक यू। नहीं, तो मैं आपकी बात सोच समझ रहा हूँ एंड बात मेरे ख्याल से सही भी है। टीवी पे बहुत कम ही स्टोरीज़ देखने को मिलती हैं हमारे को कि क्या चल रहा है एंड उसके लाइक स्टार्टअप के बारे में बताते हो। तो आई एम हैप्पी कि आपने वो स्टोरी देखी एंड आपने जर्नी शुरू करी है। तो अब हम इसमें आगे जाते हैं, तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका पूरा-पूरा इंस्पिरेशन वहाँ से आया है, जी, राइट? एंड उनको तो आपने जब उनके बारे में पढ़ा तो आपको और ऐसा क्या मिला कि आपको एक किक मिली कि नहीं यार मैं तो यही करूँगा? आई मीन बहुत बार होता है ना कि आप कुछ चीज़ समझा बचपन में समझा होता है ना, समझा। हमें एस्ट्रोनॉट भी बनना है, हमें पायलट भी बनना है, हाँ हमें हाँ, पुलिस वाला गॉट भी इट बनना गॉट इट गॉट है इट। ना? ये मैं पहले तो बन चुका हूँ पूरा, 10th तो ये तक आपके आते साथ आते नहीं बन हुआ? चुका था पूरा। अच्छ अच्छा, ये बन के छोड़ दिया था उस तक। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। तो एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा क्या था कि आपके दिमाग से वो नहीं निकला? ऐसा क्या था? Okay, okay. Because they are the people who change the who change the life of a common people in a common way. Means राइट, जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मतलब कि जो लोगों की लाइफ चेंज कर दे, देश को बदल के हाँ रख दे। जी, इकोनॉमिकल कंडीशन बोलो या अपनी राइट, सराउंडिंग्स को मतलब कि आप देखने का आपका विचार बदल दे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन तक का। राइट, तो वो जो इम्पैक्ट पड़ता है ना अपनी तो सोसाइटी के अंदर और अपने देश राइट, के अंदर, वो कुछ अलग ही बात होती है। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। तो मतलब आपके अंदर वो जुनून आ गया कि मेरे को हाँ, ऐसा कुछ करना है, वही। कि बोले उस टाइम मेरे को मतलब कि ऐसा हो गया था कि अपना देश हाँ, बदलना है। yeah, हाँ, yeah. Because I once passed out from the army school and then my dad in a defense sector. They also wanted me to go and हाँ, join the defense. But जरूरी नहीं कि हाँ, आपको वहीं पे जाके करना है हर चीज बॉर्डर पे खड़े होके। आप अंदर से देश बनता है, बॉर्डर से देश नहीं बनता है। राइट, They can serve for you means they can protect. But to राइट, grow your country, राइट, you have to go inside your country. You have to work because even today if you एब्सोल्यूटली, see right means nowadays due to COVID the people keep blaming on the government राइट, politicals and the means like राइट, you are means where's the economy GDP is going on. Brother, राइट, who have to go for this means citizen have to work for this. Citizen की जिम्मेदारी होती है जीडीपी ग्रोथ करना। आप कब तक पॉलिटिकल व्यूज को देखते हुए आप हाँ जी, किसी भी गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहोगे। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। नहीं यार, I'm really impressed by your thought process and everything that is going on and जिस वजह से आपने एंटरप्रेन्योरशिप उठाई है। तो आप एक बात बताओ मुझे, जी। मतलब आप मेरठ से आए, आप एसआरएम में पढ़ रहे हो, एसआरएम में सारा क्राउड है, लाइक एसआरएम में मुझे भी पता है, हाँ। तो मैं भी इंजीनियर हूँ ओके ओके एंड एसआरएम से नहीं हूँ बट मेरे को पता है एसआरएम का क्या सीन ओके है ओके ओके। एंड एसआरएम में हर टाइप का क्राउड आता है, हाँ। राइट? एसआरएम में हर जगह से लोग आते हैं, पूरे देश हम्म, से लोग आते हैं। या सो जब आप अपने दोस्तों को बताते थे कि यार नहीं मेरे को तो एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, मैं एंटरप्रेन्योर बनूँगा, मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, हाँ। तो तब वो क्या बोलते हैं? रिएक्शन कैसा होता है? ओके, रिएक्शन मीन्स जैसे
वे मेरे से पूछते कि तू इंजीनियरिंग करने क्यों आया? भाई मेरा मन था इसलिए आया। हाँ, क्योंकि जितने मैंने वे देखे थे हाँ ना जी, स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स देखे थे, अधिकतर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं जितनी भी स्टोरी पढ़ रहा हूँ, मैं एक्चुअली टेक हाँ स्टार्टअप से जी, पढ़ा था, तो इसलिए। लेकिन मैं जब उनसे ओके, पूछता था कि ओके, व्हाई यू जॉइन द कॉलेज, बिकॉज मेरे पापा ने बोला था, मेरे मम्मा ने बोला था, मेरे मम्मा ने बोल लिया था, मेरे मामा के चाचा ने बोला था, इसलिए यहाँ आ गया। मुझे जो बीएससी यहाँ पे यूपीएससी करना है, मुझे वो पढ़ना है। अरे भाई तू इंजीनियरिंग करने आया, तू 16 लाख रुपए डालने क्या जॉब के लिए आया? तो इंजीनियरिंग करने के अपने गाँव के पास से कर लेता। राइट, नहीं मीन्स एक्चुअली आप इतनी बड़ी सिटी में जा रहे हो, एक इंडिया की मेट्रोपॉलिटन हाँ, सिटी है, और आप 16 या 20 लाख रुपए हाँ जी, इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ इंजीनियरिंग करने के लिए, और 6 या 10 से 12 लाख की जॉब लेने के लिए। दिस इज योर थिंकिंग, लिटरली मैन। वो 10 लाख या 5 लाख का भी आप अपने गांव के पास से कर सकते थे, मैं एडमिशन दिलाऊंगा। इतनी मेहनत की है माय गॉड, 11th 12th में वहां तक माय पहुंचने के गॉड, लिए, और आप अपने मीन्स पैसा तो आप खुद का डाल नहीं रहे हो, अपने पेरेंट्स के डाल रहे हो। तभी आप मीन्स उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, तभी हाँ, आप जॉब की थिंकिंग लेके बैठे हो। अगर वो पैसा आपसे जाता ना, तो हाँ, आप कभी वो चीज रखते ही नहीं अपने दिमाग में जॉब हाँ। के लिए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। राइट, राइट, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ यार, मतलब अब आप 4th ईयर में हो अपने हाँ। इंजीनियरिंग के, ठीक है? या। आपके 2-3 स्टार्टअप फेल हुए हैं, हम्म। तो एक बात बोली जाती है ना कि डिग्री से फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? वही अब वही। तो अब आप मुझे बताओ, आपने डिग्री ली, आपने दूसरों की जर्नी पढ़ी थी, हाँ। एंड आपने आपने नोटिस किया कि यार हर कोई इंजीनियर है या आईटी है, तो आप हम्म। भी इंजीनियर बनने आ गए, ठीक है? जी। तो जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो अब मुझे ये बताओ, आप में डिफरेंट क्या है? मेरा आप तो एक डिफरेंस। मोटिव से आए हो कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो या। आप एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से आए थे। हम्म। बट असलियत में अगर आप देखो, हम्म। तो क्या ये आपके काम आ रही है? क्या आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, ओके ओके एंटरप्रेन्योर गुड। बनने की जर्नी है, हम्म। और इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं? बताओ। ओके गुड। मीन्स एक इंजीनियरिंग करने ही नहीं आया था मेरे पास, उसके इंजीनियरिंग करने के पीछे विजन था। एक विजन होना बहुत जरूरी है बैकग्राउंड में। अच्छा, तो विजन था कि हाँ जी। तो क्या विज़न था वो? हाँ मीन्स इंजीनियरिंग करके मैं टेक्निकल नॉलेज हासिल करूंगा और एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में घुसूंगा, जिससे मैं लोगों की लाइफ चेंज करना चाहता हूँ। दिस इज माय विजन। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही, इवन जो मेरे अभी करंटली स्टार्टअप जिन्होंने मेरे को हायर किया एज ए को फाउंडर, it's based on Dubai and हुँ, हुँ। currently active in Bangalore. राइट, Even they hired me on the basis of my राइट, failure, not my success. And like if you thought about means engineering, how it can help me, because the friends means हुँ, I'm having means a lot of diversity in that campus. Even the management, commerce, राइट, and marketing, and mechanical, electrical, computer science, everything, right? So I'm not a means हुँ, perfect IT engineer. I know everything. I even know हुँ, even the electrical, I even know the mechanical, even to run means how the machine to equipment works. Even I know means coding, but not the specialist. हुँ, I हुँ। even know to how to develop the website. I even know how to develop the app. I even know how the means electrical works. Even I know the finance, राइट, but I'm not the specialist in any one of it. I just know just a basic of everything, which is the initial and the most important part, especially in the early journey of the entrepreneurship. राइट, राइट। Because नहीं यार, उस हिसाब से तो फिर आपका विज़न because अच्छा है। because lot of the work you have to do by yourself, because initially आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा, कोई भी नहीं, चाहे वो आपका दोस्त हो चाहे कोई भी हो, आपको सारी चीज खुद करनी पड़ती है। राइट, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि आपको ये सारी बातें पता है, एंड आप उस विज़न के साथ आपने इंजीनियरिंग चूज़ करी है, एंड उस विज़न से आपने इंजीनियरिंग को अपने बेनिफिट में यूज़ करा है। Yeah. सो दैट इज़ अ वेरी, वेरी कमेंडेबल एंड अपलॉडेबल थिंग, आई वुड से, दैट यू हैव डन। एंड देन बीइंग एन इंजीनियर, आई कैन आल्सो से दैट प्रोबब्ली आपको अपने 4 साल में समझ में आ गया होगा कि इंजीनियरिंग जितना जुगाड़ करना सिखा देती है, वो वही। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत काम आते हैं। इवन एक्चुअली भी करंटली मैं आपको एक वो बताता हूँ, शेयर करता हूँ एक जस्ट जो अभी हमारे बिल्कुल, करंटली बिल्कुल। हमारे कंपनी के अंदर हुआ।
हम एक्चुअली डेली हाँ जी, अराउंड 100 रेंटल्स को कॉल करते हैं एक्चुअली अभी भी, कि हाँ अपने जी, प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए रेंटिंग प्लानट के साथ। हाँ जी, तो उनके मन में हमेशा एक हाँ क्वेश्चन जी, क्वेश्चन रहता था कि अगर आप अगर मान के चलिए मैं 2 लाख का कैमरा आपको रेंटल पे दे रहा हूँ, 2 लाख का कैमरा है जिसकी कॉस्ट होती है, हम्म, और मैं आपको रेंटल पे दे रहा हूँ अराउंड मीन्स 2,000 पर डे, राइट? और आपको चलो आपने राइट, मैंने सिक्योरिटी फीस ले लिया आपसे 4,000, नॉट ए बिग इशू। लेकिन अगर आप आधार कार्ड या कोई भी आईडी राइट, कार्ड आईडी प्रूफ आप डुप्लीकेट ला के दे देते हो मुझे, और आप लेके चले जाते हो, राइट, तो आप लेके भाग गए, राइट, तो उसका जिम्मेदार हाँ कौन होगा? जी, क्वेश्चन वैलिड है ब्रो, राइट, सीधी सी बात है, इवन रेंट उनके हिसाब बिल्कुल से तो। वैलिड है। हाँ जी, और जो लेकिन जो हमारे हाँ जो जी, दो दो को फाउंडर हो रहे हैं, जो मेन फाउंडर है, ही इज इन दुबई एंड स्टडीड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, and another guy is राइट, also studied from the Paris and right now working in Uber in Bangalore. राइट, So they राइट, they told me, means brother, we just facing this problem. How we just solve this, because every renters pointing the same question. So I decided do राइट, one thing, proceed with the Aadhaar card verification, because the problem is how you verify them is their means government ID proof is original or not. So tell them to bring their Aadhaar card, राइट, and you can easily verify by accessing the Udan website, which we means हमने ऐसा ओके। सिस्टम बिल्ड किया है और जिसमें आप सॉल्यूशन उसका सामने वाले सॉल्यूशन का सिम आधार या आधार कार्ड का नंबर डालो, और उसका फोटो डिटेल सब कुछ आ जाएगा, वो एट द मीन्स ऑन द क्या बोलते पॉइंट आपका वो कंफर्म हो जाएगा। बात तो सही है आपकी यार। हम्म। आई मीन जो यहाँ पे चोरी हो भी सकती है तो वो हाथ के हाथ पहले कंफर्म वही होके मालूम पड़ जाएगा कि वो काम हो रहा है नहीं हो रहा। वही वही नाइस यार। कॉमन चीज कॉमन। रेंटल में कॉमनली आधार कार्ड लेके रख लेते हैं, कॉपी रख लेते हैं। बट हाँ, आपने उसको डिजिटाइज कर दिया, डिजिटाइज तो कर आई दिया। वुड से कि आइडिया तो अच्छा है। हम्म। बिल्कुल अच्छा आइडिया है। नाइस यार। परफेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं आपकी जर्नी में। तो जी। यार अब ये एक क्रूशियल चीज है जो मुझे आपसे पूछनी है। हम्म। राइट। तो आपने बताया कि दैट आपने बहुत सारे फेलियर्स को फेस किया। या राइट। एंड आपको अरियर्स अरियर्स एज एन आपके एग्जाम में बैक आ गई, आप एग्जाम या फेल कर गए अपने, या है ना? एंड बहुत सारे एग्जाम्स आप फेल करते चले गए, आपके 2-3 स्टार्टअप फेल हुए हम्म। स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से लेके अब तक में। डिप्रेशन, डोंट फॉरगेट एंड देन अबाउट आपके दैट। सुसाइडल थॉट्स। या हाँ, हाँ, तो वही बता रहा हूँ कि आप डिप्रेशन में गए एंड आपको सुसाइडल थॉट्स आए। तो आपने एग्ज़ैक्टली कैसे डील किया उसके साथ एंड अपने आप को कैसे समझाया और कैसे बाहर लेके आए खुद को ओके कि यार ओके। नहीं, और फिर भी आप खुद को मोटिवेट कैसे करते रहे कि यार नहीं मुझे ये करना है? क्योंकि बहुत बार होता है कि यार इच्छा तो है, पता है, हम्म। जैसे अभी आपको पता है कि यार स्टार्टिंग में कोई नहीं होगा, सारा काम खुद करना है, लेकिन हम्म। फिर भी डिप्रेशन आ रहा है ना। हम्म। तो आपने खुद को कैसे मेंटेन किया? कैसे आप उस सिचुएशन से बाहर आए? और डिटेल में बताओ मुझे। ओके ओके। मीन्स एक तो जैसे मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, मेरे स्कूल का लाइफ जो था, इवन मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो हारना कभी सिखाया नहीं जाता, हार से सीखना और फिर लड़ना, मतलब बोलते हैं ना गिर हुँ, कर उठना चलना, उसी को जिंदगी हाँ बोलते हैं। जी, तो वो हाँ जी, थॉट तो दिमाग में था पहले से, इवन हम डैड को देखते आए हैं बचपन से। तो बहुत हाँ सारे जी, इवन अब मीन्स मैं अराउंड 7 इयर्स ट्रेनिंग सेंटर में रहा पापा के साथ। तो देखता था हाँ मीन्स वहाँ जी, पे बंदे कितने मेहनत करते थे वगैरह वगैरह। तो वहाँ से बोलते ना, अगर आप वहाँ की बात छोड़ो, अगर आप इवन नॉर्मल रोड पे स्टार्ट मार्केट में निकल जाओगे, आपको यू मीन्स गेट द हाँ इन्फिनिट जी, नंबर ऑफ द मोटिवेशन। बिल्कुल। तो मेरे पास जब मैं मार्केट में भी घूमता था, मैं हर ट्रेन में सफ़र करता था या कहीं पर भी, आई ऑब्जर्व द पीपल एंड मीन्स क्या मतलब मैं इनसे भी क्या गुजरा हूँ, और मीन्स मैं कल को ऐसा क्या इतना कैपेबल नहीं बन सकता मैं इनकी मदद कर दूँ? हुँ, ऐसे कि मैं इतना भी नहीं कर सकता इनके लिए, मतलब कि मैं इस लाइफ आया है, एक लाइफ मिली है आपको जो 80 साल की है, और आप हुँ, अभी 20 साल के हो जिसमें आप हुँ, सिर्फ अपना स्कूलिंग कंप्लीट किए हो। अगर आप इतनी जल्दी हार मान रहे हो तो गलत है ना ब्रो। आपको करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है उसके सिवा, राइट? राइट। तो वो चीज़ मतलब कि और जो मेरा आपने खुद मोटिवेशन है वो हाँ लोगों से जी, ही आया है,
जो कॉमन रोड पे जो बैठते हैं ना, जो गिरकर उठकर चलते हैं, उन्हीं हाँ से जी, मोटिवेशन आया है। बहुत बढ़िया। और जो आपके सुसाइडल थॉट्स थे, आपने उनसे कैसे डील किया? खुद को कैसे बाहर निकाला वहाँ से? ओके, ओके। किसी दोस्त को बताया, खुद से बात की, कैसे दोस्तों ने किया? भी एट द पॉइंट बहुत मदद की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हुँ, हुँ, उनका भी बहुत साथ दोस्तों को होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप इंजीनियरिंग लाइफ में हो ना, तो दोस्त तो माशाल्लाह मिल ही जाते हैं सबको बहुत अच्छे-अच्छे। हुँ। वो फिर हाँ जी, मीन्स जब आप सबसे पहले तो मैंने ब्रेक लिया, लगभग 2-3 दिन का। ओके। सोचा कि आगे हाँ, क्या कर सकता हूँ और कहाँ हुँ, गलती हुई, और अभी तो इतना टाइम है मेरे पास, क्या दिक्कत है? अब तो साला हुँ, 30-50 साल हो रहे हैं मेरे पास, अभी कौन सा मैं कल ही मर जाऊँगा। फिर स्टार्ट कर हुँ, दिया मैं विदिन मीन्स आफ्टर 2 days I again started with my computer and sitting in the library at 8 o'clock. राइट। This thing motivating me means अब फिर उसके अंदर जो नया आइडिया आया उसको मैंने फिर अपनी एक अलग से नया दुनिया बना ली कि इसमें ये बम बना दूंगा, इसमें ये उखाड़ दूंगा, इसमें ये उखाड़ दूंगा, उसके हिसाब से चलता रहा। और क्या। ओके, ओके, ठीक है। तो एक और बात बताओ मुझे राहुल, जी। जब आपको रिजेक्शन लेटर आपका ऑफ़र वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया से रिजेक्ट हो गया था हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप का, तब कैसा लगा और फिर आपने तब खुद को कैसे सँभाला? एक बेसिकली उस टाइम मेरे अंदर सबसे बड़ी था कि एक मिस मिसकन्फ्यूजन जिसको बोलते हैं। अब हाँ, हाँ। एंड जब वही हर चीज़ नहीं होती, लेकिन मैं उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे को लग रहा था कि अगर यहाँ नहीं गया तो मैं फेसबुक जैसी कंपनी नहीं खोल सकता, ऐसी बड़ी हाँ, मीन्स अराउंड द वर्ल्ड में नहीं खोल सकता। लेकिन हाँ। वो गलत था मैं, और ये चीज़ मुझे धीरे धीरे बाद में रियलाइज हुई हुँ, कि वो उसका ना होना वो तो हुँ, एक बात था, उसमें अगर सीखते वहाँ जाते तो भी आपको सीखने को मिलता है इसके अच्छा। लेकिन आजकल तो इतना डिजिटलाइज हो रखा है कि आप घर बैठे कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो। आपके अराउंड द पीपल मीन्स बिल्कुल। विद इन द इंडिया, यू मीन्स थिंक ब्लेस्ड मीन्स आप इतने अच्छे मीन्स रितेश अग्रवाल या ओयो को देख लीजिए, या आप मीन्स लॉट ऑफ नंबर्स ऑफ फाउंडर्स आपको अपने आसपास मिलेंगे। जोमेटो को ले लीजिए या तो पेटीएम को ले लीजिए, मूवी बैक को ले लीजिए, तो उनकी स्टोरी, अगर आप उनके फाउंडर्स की स्टोरी देखोगे हाउ दे स्टार्टेड, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। वहीं से आपको मोटिवेशन, आप बाकी चीज़ सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उधर मतलब कि हाँ जो होता है जी। ना, एक था मन में कि जाके उधर जाऊंगा तो ऐसे सीख के आ जाऊंगा। आजकल कोई चीज हाँ जी। पे करके सीखने की जरूरत नहीं। आप लैपटॉप खोलो, मैं आपको 10 साइट बताता हूँ जो आपको फ्री पे सारी चीज मिल जाएगी। सीधी सी बात है। बिल्कुल सही बात क्या है। जानना है आपको, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल देखो सही कैसे बात है। होता है, टीम टीम सेलेक्ट करना है, आप तो टीम देखिए अपने मल्टीपल जैसे मीटअप्स होते हैं आपके फाउंडर्स के बीच में, हर अलग सिटीज में जाके अटेंड करना स्टार्ट हाँ कीजिए। जी। आप एक आइडिया बनाइए, जाके फिर उसको पूरा रजिस्ट्रेशन देखिए कैसे होता है। आप आपके साथ कॉलेज में अगर आपका कोई फाइनेंस का बंदा है उससे बैठ के पढ़ो, कोई एमबीए का बच्चा है बोलो भैया मुझे ये जानना है, कोई आपका सीनियर है इंजीनियरिंग में तो भैया मुझे ये जानना है। तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा, हेल्प मांगनी पड़ेगी। आप बोलो कि बस मैं ही हूँ, मैं अकेला उखाड़ दूंगा, मुझे ही सब कुछ आता है, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनसे सीखना हुँ। पड़ेगा, उनसे हेल्प मांगो। इस फील्ड में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको कभी कोई मना नहीं करेगा किसी चीज़ से, अगर आप सामने वाले के पास हेल्प मांगने के लिए जाते हो। हाँ जी। तो इवन मेरा चेन्नई एंजल्स जो उनके सीईओ है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की उस चीज़ में। हाँ जी। बहुत मेरे को डायरेक्शन, मतलब कि इस ओके, फील्ड में इवन चेन्नई एंजल्स के अंडर में जितने भी है उधर चेन्नई में जितने भी फाउंडर्स थे, कि जस्ट बहुत फ्यूज होंगे जिनको मैं नहीं जानता और पर्सनली मीटअप नहीं किया हूँ। ओके। मैं अपने एरिया में एक फाउंडर्स नहीं छोड़ा, एक सीईओ नहीं छोड़ा जिनसे मैं ना मिला। I just take the means appointment to them वाओ and यार! discuss the ideas and means ask about them how they work and all, how the operations working. They means welcome you, and even they helping you means throughout the means your journey even in the future. That's lovely यार, that's really, really lovely. Okay, तो this is very motivating to me also, the way you're taking things ahead in your life. तो Okay. अब आप मुझे ये बताओ कि कॉलेज में जैसे होता है ना कि आपने खुद भी बताया कि आप कब तक
अपने घर वालों के पैसों पे जियोगे हाँ, और एक दिन समझ में आता है कि खुद के पैसे कमाने हैं, तो अब आप जैसे को-फाउंडर हो हाँ, रेंटिंग प्लैनेट के या एंड तो हाउ डज़ दिस थिंग वर्क्स? आप लोगों का मनी मैनेजमेंट प्लान कैसा है? रेवेन्यू कैसे आता है? आप अभी भी घर से पैसे लेते हो या फिर अपना एक्सपेंसेस खुद से मैनेज करते हो? नहीं, नहीं, कैसे हो कैसे ओके, काम ओके। करते हो आप? एक्चुअली मैंने इवन को इसमें रेंटिंग प्लैनेट जॉइन करने से पहले आई स्टार्ट वर्क मीन्स एज ए हाँ जी, फ्रीलांसर। तो वहाँ से भी काफ़ी मनी मैंने ओके, जमा किया। उसके बाद वहाँ से अपनी जो मेरे एंटरप्रेन्योर जो मीटअप्स होते थे या फिर कुछ फंक्शन होते थे, इस गूगल के भी हाँ हुए हैं जी, काफ़ी बहुत ज़्यादा, तो मैं उन पे वहीं से पे करता था एक्स्ट्रा मनी। और इवन आज की डेट में तो जब ओके, मैंने एज ए को-फाउंडर जॉइन कर लिया तो मुझे वहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो रही है फाइनेंस की। कंपनी आर सपोर्टिव डेफिनेटली। आप जब ओके, एज ए को-फाउंडर पोजीशन पे आते हो तो आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और चीज़ जो वो आपके टीम पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, मुझे समझते हैं। और हाँ जी, यही चीज़ में मेरे को बहुत फाइनेंशियली तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और रही रेवेन्यू की बात, कंपनी कैसे जनरेट करती है, इट मीन्स जो रेंटल्स होती है बेसिकली, तो हम वी हाँ प्रोवाइड जी, देम द means subscription based means for the 3 months you can upload your products and we verified your profile. So means the individual those who हाँ जी, coming to get the product from you, so even means हाँ जी, searching on our website for a particular product, so he will be like हम उनके अंदर वो जगह देते हैं कि ये सामने वाला जो रेंटल्स है ये इट्स ए प्रोफेशनल, you can easily go and buy, you can ओके, pursue with him, it's not a राइट, ओके, ओके, तो वैसे आप अपना प्लान कर रहे हो। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से जब आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा हम्म, अब मेरे ख्याल से इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर जब आप कॉलेज खत्म होगा, तो जी अब आप काम कहाँ से करोगे? लाइक बैंगलोर शिफ्ट हो जाओगे या फिर कंपनी में फुल टाइम करोगे या फिर फुल एक टाइम जॉब जॉइन करने के साथ-साथ काम नहीं, नहीं, करोगे? नहीं, जैसे नहीं। कि एक्चुअली मेरा आइडिया ये है कि अभी तो इसमें बहुत सारा अभी तो कोविड की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन अभी भी दिन में बहुत हाँ जी, काम करना पड़ता है डेली। मीन्स दिन में पता नहीं कितनी कितनी मीटिंग्स आती है, फाइल से बनानी पड़ती है दुनिया भर की। तो वैसे तो बैंगलोर में हाँ अभी जी, हमारा ऑफिस खुला है नया, तो शिफ्ट करने की वहाँ ओके, से सोच रहे हैं कि वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा मैं, और या फिर दुबई में शिफ्ट हो जाएंगे। हम दोनों जगह पैरेलल ही चल रहे हैं, बैंगलोर और दुबई। हम दोनों कंट्रीज राइट, साथ में लेकर चल रहे हैं, इंडिया एंड एज वेल एज यूएई। हाँ जी। ओके, ओके, ओके। तो अब राहुल मुझे एक बात बताओ जैसे कि आपने जॉइन किया एज़ अ को-फाउंडर इस कंपनी में, जी, राइट? तो इस कंपनी की जो इनिशियल वो होते हैं ना इनिशियल सेटअप जो होता है, जी, उसके स्ट्रगल से आपको नहीं निकलना पड़ा था। वो सारा का सारा स्ट्रगल ऑलरेडी हो रखा था, आपके को-फाउंडर्स ने ऑलरेडी कर लिया था। तो अब जैसे कि जब आप कंपनी को आगे जॉइन कर रहे हो तो आपकी पार्टनरशिप के लाइक अगर आप बता सकते हो तो वो आपकी पार्टनरशिप के क्लॉज़ेस क्या-क्या हैं? लाइक आप रेवेन्यू जनरेट करके कुछ शेयर अपना खरीदोगे या ओके, ओके, फिर गॉट इट। आप पहले से किसी शेयर के ओनर हो, तो ठीक, 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 कैसे ठीक, आप लेके जा रहे हो उसको आगे? ठीक, ठीक, ठीक। एक्चुअली ये जर्नी तो ऐसे स्टार्ट हुई थी कि भैया ने, जो हमारे जो पार्टनर्स है, उन्होंने ये सेम फॉर्मूला पहले जयपुर में इम्प्लीमेंट किया था, तो वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो फिर इंडिया ओके, मार्केट में एंट्रिंग करने की कोशिश की, एक्सपेंड करने की कोशिश की, तो वहाँ पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को सोचा कि इंडियन मार्केट का जो ग्राउंड बेस है, उसकी एक्चुअली मुझे इतनी बार फेल हाँ फेल जी, हो चुका हूँ, मुझे काफ़ी नॉलेज है कि लोगों के बीच में क्या चलता है। हाँ जी, तो इसलिए उन्होंने मुझे हाँ हायर जी, किया। और इवन जो लीगल होते हैं, मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, चाहे लीगल हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे ऑपरेशंस हो, चाहे टेक्निकल चीज़ हो, मुझे सारी आता है। लेकिन किसी चीज़ में परफेक्शन नहीं, लेकिन सारा सबका हाँ आता है, थोड़ा थोड़ा सबका पता है कि कहाँ पे क्या होता है। हाँ जी, तो हाँ जी, तो इन्होंने मेरे को मीन्स कंपनी ऑफर्ड मी अराउंड द 10% इक्विटी and as the post of the ओके, COO and founding member. So and means we're doing well all together. It's means it's a whole company, not we all are responsible to make tomorrow its success even around the world, and we put the definitely example from this country, India, and we definitely give a unicorn to this country tomorrow. that's a good and amazing vision that you're moving ahead with, Rahul, I would say, and this is a very, very lovely way, I would say, and ऑनेस्टली मैं ये कहना चाहूँगा अभी लाइक ऑल्दो हमारी बातें खत्म नहीं हुई अभी, जी, बट go जितना ahead. अभी हमने बात किया है, मैं उस पे ये कहना चाहता हूँ कि गाइज़ जो भी सुन रहे हो,
आप हमें सुन रहे हो, आपको समझने की ज़रूरत है कि राहुल ने इतनी बार फेल किया एंड अपैरेंटली बिकॉज़ ऑफ दैट दोज़ फेलियर्स, Rahul has become the co-founder of the company that he is right now. उन फेलियर्स राहुल रुका नहीं, ये समझने की बात है, राहुल कभी रुका नहीं, राहुल चलता रहा। उसके बाद सुसाइडल थॉट्स भी आए बट उसके बाद भी वो चलता रहा। दैट विजन इज़ व्हाट मैटर्स विजन विजन था ना इस चीज के कि पीछे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपके पास विज़न था एंड आप विज़न के पीछे चले जा रहे हो, दैट इज़ रियली अमेजिंग। तो इस बात के साथ-साथ राहुल मुझे ये जानना है कि आपके जो पहले स्टार्टअप्स थे वो किस बारे में थे एंड उसमें क्या-क्या फेल हो गया था? आई मीन क्यों फेल हो गए वो? तो और ओके वहाँ से ओके आपने क्या सीखा? ओके ओके। एक्चुअली जो फर्स्ट मैं आपको स्टार्ट करता हूँ विद brandloot.in। ओके। brandloot.in इसकी अभी भी ऑपरेशन में है। हाँ, सो हाँ। पैरेलली मीन्स वन ऑफ माय फ्रेंड इज हैंडलिंग दिस थिंग, बट ड्यू टू कोविड द ऑपरेशन हैज बीन ओके, शटड डाउन। इसमें क्या है मीन्स इट्स ओके, a फ्लैश फ्लैश सेल based system is out there, e-commerce platform, means you can buy the ओके। luxury item हुँ, हुँ। on a flash sale, ऑन ए फ्लैश बेस्ड सिस्टम। मीन्स जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, मीन्स आपके आसपास सिटीज में जो आप कह सकते हो जो ब्रांडेड स्टोर्स होते हैं, ओनली ओनली ब्रांडेड स्टोर आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ जी, और जो उनके अंदर लग्जरी हाँ आइटम्स जी, जो उनके सेल नहीं हो पाते हैं, तो वी पुट देम ऑन हाँ जी। सेल ऑन आवर वेबसाइट। ओके, आप डायरेक्टली हमारी साइट के थ्रू जाके आप ये प्रोडक्ट, लग्जरी प्रोडक्ट जो टॉप ब्रांड्स के होंगे, वो आप उनको हमारी साइट से खरीद सकते हो, जो कि आपको घर बैठे नहीं पता लगता कि आपके जो पास में जो ब्रांडेड स्टोर है वहाँ पे क्या सेल चल रही है, वो आपको बिना मार्केट में जाए पता नहीं लगता। तो इस चीज़ को डिजिटलाइज करने हाँ के लिए जी, मैंने सबसे पहले वो इम्प्लीमेंट किया। वो ऐसी बात नहीं कि ओके, पूरा शट डाउन हो चुका है, इट्स ऑपरेशन वर्किंग एंड होपफुली वी डूइंग ग्रेट राइट नाउ इन चेन्नई। And one of my हुँ, friend is handling right now, one of my, you can say, partner. And second I build ओके, second company I build a brand low, this eco, name as eco. ओके, Eco is just a three tire based electric stand up vehicle, three tire based ओके, electric stand up vehicle for patrolling purpose, ओके। like on means railway station and the airport you can use this। you can maybe आपने देखा होगा सेगवे, राइट? हाँ, तीन हाँ, हाँ, टायर हाँ, पे देखा चलते है। हैं, राइट? तो हमने उसको क्या किया, तीन टायर हाँ में जी, हाँ कन्वर्ट जी। करने की कोशिश की। और बैटरी की हाँ, हाँ। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसका हमने उसका स्वैपिंग सिस्टम रखा, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेबल, मतलब कि आप दो राइट, बैटरी उसमें पहले से लगी रहेगी। आप कभी उसको दो बैटरी और हम हाँ एक्स्ट्रा आपको जी, देंगे, वे चार्ज रहेगी, और जब ये डाउन हो उसको स्वैप बाहर निकालो और वे दूसरे दो डाल दो, और जो आपने उधर से निकाली डिस्चार्जिंग बैटरी, आप उनको चार्जिंग पर लगा दीजिए। इसको हम बेसिकली बनाए थे हाँ जी, एयरपोर्ट और डिफेंस सेक्टर के मकसद से, मीन्स उनकी पेट्रोलिंग को देखते हुए। कि आप बॉर्डर पे देखते हो कि मीन्स इवन हाँ वन जी। सर्विंग इन डिफेंस सेक्टर, तो उनको कहीं बहुत दूर हाँ, तक हाँ, मतलब हाँ। कि चलना पड़ता है, इतना ज़्यादा करना पड़ता है, तो उनकी उनको सहूलियत देने के लिए मैंने ये चीज़ लेकर आया था। इसमें हम काफ़ी अच्छे रहे, आगे वाह! बढ़ते रहे, लेकिन इसमें हमने क्या बोलते हैं इनिशियल लेवल ऑफ फंडिंग जो होता है हमने वो भी पास आउट कर लिया था। लेकिन कुछ ऐसा रहा कि ओके। जैसे कि चाइना में कोरोना एंटर बहुत जल्दी हो गया था, इंडिया में लेट हुआ, लेकिन जो हाँ जी, उसके रो हाँ पार्ट्स जी। थे इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन चाइना। सो हमको वहाँ ओह से हो वो हो! ओके। बैक आउट करना पड़ा। हम कल करेंगे, ऐसी बात आई नहीं कि गेट मैं इट, इसको आई गेट इट, रोकूंगा, आई मैं गेट इट। कल करूंगा, लेकिन अभी उस चीज अभी इकोनॉमिकल कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट भी इतना ज़्यादा फैसिलिटीज कर दे एकदम से। तो कल आऊंगा, जरूर आऊंगा, साथ मिलकर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसको छोड़ूंगा थोड़ा ही। राइट, 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 राइट। बिल्कुल, नाइस यार। तो अच्छा, तो अब आप मुझे बताओ या इन 2 फेलियर से आपको सीखने को क्या मिला? दो फेलियर्स नहीं, अभी एक और है, ऐसा थोड़ा ना। अच्छा एक और है, तो अभी सॉरी एक और है। बताओ। हाँ ये जी, मैंने एक्चुअली हाँ टैग जी, बताओ, बताओ, स्टार्ट किया बताओ। था, लाइफ पार्टनर फॉर यू डॉट कॉम। हाँ जी। लाइफ पार्टनर फॉर यू डॉट कॉम किया था, मीन्स ओके, lifepartnerforyou.com। या ओके। या काफी इंटरेस्ट आ रहा होगा अभी, राइट?
ऑडियंस को भी काफी इंटरेस्ट आएगा अभी। हाँ जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये इंडिया के हिसाब से। हाँ जी, तो तो बताओ फिर आपने क्या किया इसमें? एक्चुअली आप देखे होंगे लाइक शादी डॉट कॉम आप जानते हो, जीवन साथी डॉट कॉम आप जानते हो। तो मैंने क्या किया था, जब आप एक हाँ जी, हाँ प्रोफेशनलिटी जी। में मीन्स प्रोफेशनल में आते हो, लाइक आप एक इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या मीन्स एक काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल में हो, इवन द आर्टिस्ट, तो आप वहाँ पे हाँ, हाँ। कंट्री की बॉर्डर मायने नहीं रखती। हाँ कंट्री की जी। बॉर्डर मायने नहीं रखती उस लेवल पे। तो ये भी इसको बनाया था मैंने, सी इफ यू आर ए हाँ सिंगल जी, हाँ जी। इंडिविजुअल, यू कैन मैच योर विद योर लाइफ पार्टनर इवन बियॉन्ड द बॉर्डर, इवन बियॉन्ड द बॉर्डर। ओके। लाइक आप यहाँ पे काम कर रहे हो, या आप कोई आपका मीन्स लाइफ पार्टनर जैसे कि आप नहीं जानते हो, कहीं और वर्क कर रहे हैं, यू कैन डिजिटलाइज, यू कैन मीन्स match each other and start chatting and all. Till means this is क्या like बात है you यार! see even the Tinder, it's just means taking the lot of charges first thing. Even the jeevansathi.com हाँ taking a जी। lot of charges, subscription fees. So I'm not taking the means हाँ जी। taking the very less amount, means around the 100 or 200 rupees initially. So हाँ जी। even lot of people is coming and the site is crashed just due to the lot of registration. ओह माय गॉड! Site is ओके। crashed just due to the lot of registration. I'm getting the lot of people day by day, and the lot of matches and the handling out there. I just but my actually spend my father's money on the bandwidth. You can say हाँ जी। web hosting. So हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब क्रैश हो गया तो मैं उसको अपग्रेड कर नहीं पाया उस टाइम, मीन्स इतना फाइनेंशियल कंडीशन मेरा ठीक नहीं था, क्योंकि मैं कोई भी कॉलेज भी चल रहा था और काफ़ी सारे इधर उधर घुसा हुआ था, कि मेरे को आपको जैसे कि बताया, मैं कोई भी प्रोग्राम नहीं छोड़ता था एंटरप्रेन्योरशिप के सीखने से, या कोर्सेज वगैरह हाँ पे बहुत जी, हाँ ज़्यादा जी। मनी डाल देता था। तो वहाँ से मैं उस चीज़ को अपडेट नहीं कर पाया अपने वेब होस्टिंग को। तो अभी ओके। सेविंग काफ़ी आ चुकी है मेरे पास, तो अब मैं तो उसको भी आपके लिए चलाऊँगा। खुशखबरी आने वाली है। कोशिश नहीं करेंगे यार, मुझे आपके अकाउंट में खुशखबरी उस नहीं पर चाहिए। जल्द बने। और आप हमको शादी में बुलाएं। अरे नहीं भैया, मेरी शादी में बहुत टाइम है अभी। इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो अब ये 3 हो गए, चौथा भी है। नहीं नहीं, अभी इतनी काफी है। ठीक है। तो इन तीनों स्टार्टअप के जिस भी वजह से ये फेल हुए, जी, आपको आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि आपको ट्राई करते रहना चाहिए। आपको पता नहीं कब कहाँ पे मिस फेल होते हो ना आप, तो आपको सीखने को ही मिलेगा। हुँ। फेल से डरना नहीं चाहिए। आपको एक नई अपॉर्चुनिटी बना देता है। अगर आप वहाँ पे फेल होते हैं ना, तो आपको 10,000 ऐसे बोलते हैं कि आपको 10,000 ऐसे मॉडल्स पता लग जाते हैं जो नहीं चलने वाले, 10,000 ऐसे रीजन जो कभी वर्क नहीं करेंगे, और ऐसे हाँ दस जी, हजार वेज जो वर्क करेंगे। राइट। तो आपको डिफरेंस पता लग जाता है क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो बहुत बिल्कुल सही, आपने थॉमस अल्वा एडिसन को कोट कर दिया इस वक़्त। तो नाइस, नाइस, नाइस यार। सो ये तो हुआ, बट अगर मैं आपसे मतलब ऑल्दो आपके सारे फेलियर्स ही थे जिनसे आपने सीखा है, जी, राइट? एंड बट स्टिल मैं आपसे एक बार पूछ रहा हूँ, बाय चांस कुछ बच गया हो तो, कोई एक ऐसा फेलियर जो कि बहुत बड़ा सेटबैक था आपके लिए एंड जिसने आपको सबसे बड़ी सीख दी हो आपकी अब तक में? अ, सबसे बड़ा फेलियर हाँ, मतलब ऑल्दो आपने सारे बता दिए, बट मेबी शायद से ऐसा कुछ रह गया हो, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। मेजर तो मेरे लिए वही था जो सुसाइडल थॉट वाला था, जैसे कि विद इन 1 मंथ आई जस्ट गेटिंग मीन्स फेलियर बैक टू बैक, अगेन अगेन मीन्स हुँ, हुँ, हुँ। मॉर्निंग में उठ रहा हूँ, मेरे को अलग से कोई चीज़ नहीं फेलियर नजर आ रही जो मैंने किया था। जो ओह मैंने माय गॉड! ओके। एरियर बोला, और फिर जो अपना मैंने क्या बोलते हैं स्टार्टअप का बोला, और फिर वहाँ से रिजेक्शन बोला यूसी से, हाँ तो जी, हाँ ये जी, तो एक मेजर हो गया उस टाइम पे। हाँ उस टाइम पे जी। डे टू डे ऐसे हो रहा है, मीन्स कोई कहीं मेजर प्रोजेक्ट मेरे को कहीं सबमिट करना था, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। राइट। कहीं जा रहा हूँ तो मीन्स हर जगह कोई मीटिंग कैंसिल हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मीन्स कभी कभी उस डिप्रेशन की वजह से मेरे सामने वाली चीजें इफेक्ट हो रही है, दूसरी चीजें। राइट। तो बहुत ऐसा तो सारे नहीं हुआ उस पॉइंट आपकी गर्लफ्रेंड ने भी छोड़ दिया था आपको? ये नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अच्छा। इतने अच्छे दिन नहीं आए। ओके, ओके, ओके। नाइस यार, फिर तो आई वुड से कि
आपने अपने बिगेस्ट फेलियर को एक तरीके से अचीव ऑलरेडी कर लिया है, आप वहाँ से सीख के बाहर आ चुके हो। जी, तो जी। दैट इज़ अ वेरी, वेरी गुड थिंग आई वुड से। ठीक है, तो अब हम थोड़ी-सी आपके बिज़नेस के बारे में बात करते हैं एंड अब आप मुझे ये बताओ, सिंस आप पढ़ते भी हो, आप अटेंड भी करते हो, सब कुछ करते हो, तो जी। अब आपके मनी मैनेजमेंट प्लान्स क्या हैं? कि आप मनी अपने मतलब मैनेजमेंट। आपके पास जो भी सेविंग्स हैं या फिर हाँ ओके। जी, और जो आप बिज़नेस आगे चला रहे हो अपने को-फाउंडर के साथ में, तो जी। उसमें आपके उस पैसे को मैनेज करने के प्लान्स क्या हैं? ओके, ओके, ओके। आई विल टेल यू मीन्स बिकॉज़ इसके अंदर भी जब आप एक एंटरप्रेन्योर जर्नी में जाते हैं तो आपके पास 3 फाइनेंशियल ग्रुप बन जाते हैं एक्चुअली में। फर्स्ट आता है जो हाँ आपका जी, फैमिली फाइनेंशियल होता है। फैमिली फाइनेंस होता है ओके, मीन्स आपको घर चाहिए या फैमिली मेंबर जो आपकी मीन्स लाइफ पार्टनर आई है उसका कुछ एम होगा, गोल्स होते हैं, उसको सपोर्ट करना। बिल्कुल, अपने मम्मी-पापा को बिल्कुल। कुछ एम होंगे उनका कुछ मतलब कि एक फैमिली का जो फाइनेंस होता है एक वो चीज़ आती है। सेपरेट हाँ बॉक्स जी, होता है उसका। फिर आता है एक पर्सनल। पर्सनल के तौर पे आप कह सकते हो कि आपका कोई एक महँगी कार खरीदने का शौक हो या फिर आपका वर्ल्ड टूर करने का शौक हो। हुँ। जैसे कि फिलहाल के लिए तो मेरा अभी लाइफ पार्टनर डॉट कॉम लेके आऊँगा मैं, खुद की पर्सनल फाइनेंस में अच्छा, जो मेरे को मैनेजमेंट करना है, खुद का हाँ पैसा जिसमें जी, डालना है और फिर तीसरा जो हाँ बॉक्स जी, बनता है इसके अंदर बनता है कंपनी फाइनेंस का, जो हाँ आपका जी, एज़ ए जैसे कि 10% इक्विटी है आपकी कंपनी के अंदर और अब हाँ ये जी। नहीं कि आप उसको कल ही बेच के निकल जाओगे कि मैं तो आज ही करोड़पति बन गया, ये सिर्फ़ एक मिथ होता है लोगों के अंदर। आप जैसे टीम में हाँ जी। देखते हो जो बड़े-बड़े फाउंडर्स होते हैं कि इनकी इतनी वैल्यूएशन है, हुँ, हुँ, हुँ। इतनी इक्विटी इतनी उनकी इतनी वैल्यू होती है और इतनी वेल्थ होती है तो कल ही ये नहीं कि कल ही बेयर मार्केट में बेच देंगे ऐसे अपनी इक्विटी और कल ही करोड़पति बन जाएँगे। ऐसा नहीं होता है, हुँ, लोगों के हुँ। अंदर मिथ होता है, आपको वो सँभालना पड़ता है। किसके लिए? अपने स्टेक राइट। होल्डर्स के लिए, अपने मतलब कि जो होता है ना आपके जो पार्टनर्स होते हैं, आपके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, हुँ, आपके हुँ। जो कंपनीज़ के अंदर एम्प्लॉइज़ होते हैं या आपका कस्टमर होते हैं, आपको सबको ध्यान हाँ रखना जी। होता है। आपको ये नहीं कि कल आपकी वेल्थ बढ़ के आप छोड़ के भाग जाओगे। यू हैव टू बी आउट हाँ, देयर। हाँ। अभी ज़रूरी है कि आज आपकी बढ़ गई, कल हो सकता है घट भी जाएगी। लेकिन आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उस चीज़ के अंदर, आपने जहाँ से उसको लेके गए हो, जितना बढ़ाया है, वो आपके साथ आपका वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका जो फाइनेंशियल जो आपकी राइट। वेल्थ है, उसको भी बनाए रखना होता है और अपने साथ-साथ अगर आपकी बननी है तो आप अपने साथ-साथ आपके अपने एम्प्लॉइज़, अपने स्टेक होल्डर जो इन्वेस्टर्स हो गए, इन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है, अपने पार्टनर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। लंबे बिल्कुल, प्रोसेस के लिए आप अपने आप को इसमें ढाल लेते हो। तो ज़रूरी बिल्कुल, भी है बिल्कुल। आप मीन्स अगर आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉइज़ है, एक स्टेक होल्डर्स है, तो उनकी फैमिली की ज़िम्मेदारी भी आप पर आती है। आपके कस्टमर हैं, उनकी भी हुँ, ज़िम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है। आप उससे भाग नहीं हुँ। जाओगे। आपको वहाँ पे रुक के लड़ना पड़ेगा उनके साथ। तो वही चीज़ है बिल्कुल। इसके अंदर ये 3 टाइप के फाइनेंशियल मैनेजमेंट आते हैं। हर तीनों की अपनी-अपनी एक वैल्यू है। आप फैमिली फाइनेंस को और भी आप कैसे मैनेज कर रहे हो उसको? इसको मैं डिवाइड कर चुका हूँ अलग-अलग ग्रुप में। अच्छा, तो आप इसी डिवीज़न को फ़ॉलो करते हो हाँ, पूरा-पूरा? मैं इसी डिवीज़न को आप जैसे कि आप जानते हो एक मीन्स मैं फ़ॉलो करता हूँ, एक वरुण करके सर है, फाइनेंस की दुनिया हाँ में जी, बहुत अच्छे हैं। तो हाँ मैं जी। लेक्चर्स भी पढ़ता हूँ, सीखता हूँ या और सीएज होते हैं, मैं जैसे कंपनी की वजह से मेरे को सीए से मिलने के सीए होते हैं कंपनी के अंदर, उनसे मिलता हूँ। ये नहीं कि वो कंपनी के अंदर या मेरे अंडर में काम कर रहा है, उससे सीखना नहीं चाहिए। वो फाइनेंस पे काम कर रहा है, उससे हुँ, सीखना नहीं हुँ, हुँ। चाहिए। मैं बैठता हूँ, उनके साथ सीखता हूँ, वो सिखाते हैं। उससे सीखते हुए मैं उनको अडॉप्ट करता हूँ, मैं सुनता हूँ बिल्कुल, उनके उनकी। इट्स नॉट लाइक कि मैं अगर फाउंडिंग मेंबर हूँ, मैं उन पे चलाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। मैं सीखता हूँ उनसे, सीखने को मिलेगा तो नहीं मेरे लिए बेनिफिट रहेगा, उनके लिए भी। बोलते हैं शेयर द नॉलेज और जितना सीख लो कभी हमेशा कम ही रहता है। तो वही चीज़ ज़रूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हो यार आप। राइट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं कि अब आप मुझे ये बताओ, जैसे अब आप इस कंपनी मतलब जो आपकी कंपनी रेंटिंग प्लैनेट, ये 2 जगह से डायरेक्टली ऑपरेट हो रही है। आपकी एक को-फाउंडर दुबई में है, एक बैंगलोर में और आप यहाँ पे चेन्नई में हो एंड पूरा जी, मैनेजमेंट चल रहा है। तो अभी अगर हम बात करें कि हर बिज़नेस में कभी न कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है।
राइट? जी। तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि आप लोग फेस कर रहे हो? इस टाइम से सबसे जो रिसेंटली था वो तो ये आपको जो मैंने आधार कार्ड वाला बताया था सिस्टम, केवाईसी वाला डिजिटलाइज करना, ये था। लेकिन हाँ अभी जी, इस टाइम पे एक चीज़ और आ रहा है कि लोगों को जोड़ना अपने साथ, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो रेंटल्स है, शॉपकीपर्स है, हाँ जी, हाँ उनका जी, डेली सेल्स पे ही उनका घर चलता था। बिल्कुल, तो अब लॉकडाउन है तो हम मार्केट में उतर नहीं सकते, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, जो डिजिटली अवेलेबल थे उन तक तो हम पहुंच जाएंगे, पहुंच रहे हैं, काफ़ी हद तक पहुंच भी गए। राइट, बहुत अच्छे, मतलब कि हमने दिल्ली हाँ कवर किया, जी, नोएडा कवर किया, इधर अहमदाबाद में भी घुस रखे हैं, अभी बेंगलोर में भी चल रहा है आराम से, अच्छे से पुणे में भी चल रहा है। लेकिन जो हाँ जी, डिजिटल भी अवेलेबल नहीं थे, गूगल पे भी अवेलेबल नहीं थे जिनके नंबर्स, अब उनके हुँ, घर हुँ, बेचारे जो लोग के मीन्स रेंटल बेसिस पे चलता था, डेली सेल करते थे, तब चलता था, उनको साथ जोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब कि कहीं भी हिम्मत ना छोड़ दे, उसका ओके, बहुत डर लग रहा है। राइट, तो राइट, अपने राइट, साथ राइट, जोड़ना और राइट, उनको पढ़ाना ही हमारा अभी सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम हो रहा है, अभी उनको साथ कैसे जोड़े, नाइस क्योंकि वो मतलब चीज़ बहुत ज़रूरी है अपनी जो सोसाइटी। हर कोई चीज़ मीन्स बिल्कुल, हर कोई बिल्कुल, इंसान वो अफोर्ड नहीं कर सकता न्यू थिंग्स, हाँ जी, और वो एक बदलाव लेके आए जिसकी वजह से इवन इतना ही नहीं कि वे लोगों की मदद करते हैं, इवन वे हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब कि इसमें साथ देते हैं। राइट, ई वेस्ट जो होता है मीन्स उनको बचाते हैं, मतलब कि कोई रेंट एक कैमरा है तो वो एक बार बार सर्विस में जा रहा है, ऑपरेशन में आ रहा है। हुँ, अगर वो हुँ, ऑपरेशन में नहीं आता तो वो हर एक बंदा जिसने उसको रेंट पे लिया, वो हर एक बंदा उसको कैमरे को खरीदता, राइट, और वो खरीद नहीं रहा है। इससे हमारा क्या बोलते हैं, ई वेस्ट समझ लीजिए, हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हुए लोग, उनको कभी हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। राइट, 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 ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ राहुल कि जो आपका ये बिज़नेस चल रहा है जी। एंड अब आप तीनों 3 अलग जगह से मैंने अभी भी कहा था आप लोग ऑपरेट कर रहे हो। तो इस इन प्रॉब्लम्स के अलावा राइट, जी। जो आपने बताया मुझे और कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो कि आप लोगों ने फेस की हो या फिर कुछ ऐसा स्ट्रगल जो कि अर्ली स्टेज में आपने फेस नहीं किया बट आपने उनसे सीखा अपने को-फाउंडर्स से, ओके, ओके, उसके बारे में ओके। मुझे कुछ बताओ? को-फाउंडर्स के बारे में तो जैसे कि उनका काफ़ी अच्छे-अच्छे मीन्स काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है। उन्होंने एक वन वो द को-फाउंडर अमिंदर, he even worked in Uber, and the second one is working in Dubai. His means ओके। right now means अभी रेंटिंग प्लेनेट संभाल रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने मीन्स दे हैविंग द एक्सपीरियंस अप टू 10 to 15 years, और उसके बाद भी उन्होंने मीन्स एक एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड को चुना, जो एक अपने आप में मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन लगता है, मोटिवेट के वे साथ में जुड़े, हुँ, और हुँ। मतलब कि वे काफ़ी कैपेबल है वहाँ पे, जिस पोजीशन पे है उनको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से बंदे को थिंकिंग होता है कि पैसे के लिए आ जाते हैं, और वे चलते भी नहीं है। दे हैविंग द मीन्स, मतलब कि बाहर रह के, बाहर से पढ़ाई राइट। किया और बाहर के देश में मतलब कि जॉब करते हुए भी उनको एक काफ़ी अच्छा, मतलब कि उन्होंने इवन ये वी ऑल डिसाइडेड टू परस्यू विद मीन्स द ओरिजिन ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंडिया ओनली। हम कल दुबई से स्टार्ट कर सकते हैं, ओके, हमको काफ़ी अच्छा मीन्स इम्पैक्टफुल मिलेगा, पॉजिटिव, बट नहीं, राइट। देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, सीधी सी बात है, कौन करेगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो बिल्कुल मतलब सही कि बात है। बाहर पढ़े तो राहुल अगर मैं और आपसे एक बात पूछूँ जी, हाँ जी, मैं एक बार एक पॉइंट क्लियर का तो अगर मीन्स मैं आपसे एक बात एक हाँ मिनट, एक जी, मिनट बिल्कुल, क्लियर करता बिल्कुल, हूँ। प्लीज़। मीन्स जैसे कि आप देखोगे, इंडिया से जैसे डॉक्टर पढ़ते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वे बाहर जाते हैं, बाहर के इंडिया, मतलब कि बाहर के हाँ जी। क्या बोलते हैं, देश के अंदर अपना आउटपुट देते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुँ, पूरा टाइम वहाँ पे रह जाना भी एक थोड़ा नेगेटिव जाता है। आप इस देश से पढ़ रहे हो, आप दूसरी जगह इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक लंबे टाइम के लिए उधर रहना, वो थोड़ा इम्पैक्ट देता है नेगेटिव में। अब इस टाइम इसमें क्या है कि राइट। हमारे जो पार्टनर्स है, वे बाहर पढ़े, पूरी ज़िंदगी वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे, लेकिन एट द एंड वे इंडिया में आना चाह रहे हैं, इंडिया को पढ़ाना है। हुँ, हुँ। आज नहीं तो कब पढ़ाएंगे,
आप मतलब से बोलते हैं ना कि आपको भी तो अपने देश के लिए कुछ बनता है ना, आपके तरफ से। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हो? आप हमेशा मीन्स गवर्नमेंट से या इंडिया से ही वो करते हो उम्मीदें कि हमारी ये चीज़ें पूरी हो जाए, हमारी ये चीज़ें पूरी हो जाए। बाहर जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि इंडिया में तो वो नहीं है। अब इंडिया में से तो तुम पढ़ के बाहर आ गए, अब उधर क्या कैसे होगा? सीधी सी बात है। तो आप ही तो थे जो बढ़ाने वाले थे, वो गवर्नमेंट थोड़ी थी जो देश को बढ़ा के लेके जाएगी। वो अब आप तो बाहर राइट। आ गए, पढ़ गए, सस्ते में पढ़ गए, और फिर बोलोगे देश नहीं बढ़ रहा, गवर्नमेंट ने क्या किया, हम क्या करें उधर जाके? अब करेगा कौन? आप और हम ही तो होते हैं, और कौन होता है? राइट, 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 बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो राहुल, अब आप मुझे ये बताओ, हाउ इज योर फैमिली सपोर्ट फॉर दिस थिंग, फॉर द जर्नी दैट यू हैव ओके टेकन अप? ओके। एक्चुअली इसमें इतना वो नहीं, मैं खुल कर बताता हूँ पूरा कि देखो, हाँ हर जी। किसी पेरेंट्स की तरह मेरे भी पेरेंट्स ये थे कि इसका एक स्टेबल स्टेबल क्या बोलते हैं लाइफ हो, मीन्स एक अच्छी सी जॉब लग जाए, पढ़ाई कर ले, और हाँ, शादी हाँ। हो जाए, बच्चे हो जाए, खत्म। इतने रहते हैं। राइट। लेकिन आई कन्विंस माय फादर, तो मैं बोला कि पापा मेरे को ना वो बनना है एंटरप्रेन्योर। बोले ये क्या होता है? मगर बोले इज भी लाइक ये कौन सी जॉब होती है? तो क्योंकि हाँ, पापा के था मन में कि ये डिफेंस में जाएगा, क्योंकि उनको लगता था मेरी एक्टिविटीज है, मैं काफ़ी हाँ, स्पोर्ट्स में भी हाँ। वगैरह वगैरह काफ़ी मोटिवेशन रहा हाँ हूँ। जी। तो मगर वो एंटरप्रेन्योर बनने बोले, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? मगर उन्हें इज भी लाइक एंटरप्रेन्योर कौन सी जॉब होती है? मगर जॉब नहीं होती है, वो खुद की कंपनी स्टार्ट करना होता है, और खुद की कंपनी, हाँ। और तू पागल है क्या? तो मगर वो तो अंबानी वगैरह, क्योंकि उनके मन में था कि जैसे कि न्यूज में आते थे, न्यूज का हमारे ऐसे ही हो रखा है ना कि जो भी बंदे हुए दिखाते हैं तो एक बहुत बड़ा, बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा होता है लाइक अंबानी वगैरह, वे शो करते हैं हमेशा। हाँ। हाँ जी। बीच के छोड़ देते हैं, जो वहाँ जो नीचे से ग्राउंड से उठकर जो वहां तक जाने जा रहा होता है ग्राउंड में, हाँ, उस हाँ। पाथ में उनको हाँ, छोड़ देते हैं एक्चुअली मीडिया। तो हाँ। तो उनके मन में बस वही आता है कि उनके पास तो इतना पैसा है, वो तब जाके स्टार्ट करते हैं, ये क्या सोच रहे हैं इधर बैठ के। तो कन्विंस किया, बोले नहीं मैं कर लूंगा देख। फिर मैं आज भी लाइक मैंने उनको ऐसे थोड़ा मोटिवेट किया, तो चार थॉट्स मारे उनके ऊपर कि हाँ। 80 साल की जिंदगी है, 20 साल तो स्कूल में गुजर गए, गुजर जाने हैं, करने तो एक ही तो जिंदगी है, कौन सा बार बार होती है, करने तो हाँ। अपने मन की। तो मम्मी भी सपोर्टिव आ गए, चलो ठीक है ठीक है। तो बोलते चलो एक वो देख, क्या बोलते हैं, प्रॉमिस होगा, हम बोलिए। बोले कि किसी का गलत मत करना, और ड्रग्स वगैरह मत करना, और हाँ। तेरी वजह से कभी किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। भाई किसी का गलत काम मत करना, गलत रास्ते मत पकड़ जाना, और ड्रग्स वगैरह ये इन चक्करों में मत पड़ना, बाकी तेरे को जो करना है कर। तो आई बी लाइक ओके डील डन। लेकिन आज के बाद बोलना मत ये करो। तो बोलते चलो ठीक है। Sweet. Sweet, yeah, sweet. That's really sweet. Nice, yeah. This is also very nice to know that आपके पास पूरा family support भी है, and अब आप अपने vision के पीछे जा रहे हो बिल्कुल लग के. So this is very very inspiring and motivating, I would say. थैंक यू। And अब मुझे एक क्वेश्चन जो पूछना है इससे पहले कि हम पॉडकास्ट के एंड पे पहुंचे, दैट इज कि अगर मैं बोलूं कि आर यू मनी माइंडेड, तो आप क्या बोलोगे? यस। क्यों? बताना चाहूँगा आपको कि हाँ जैसे जी। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है, मीन्स हम बेसिक पे आते हैं, राइट? कि हाँ जी। मैं ये नहीं कि हमेशा फ्लाइट से ट्रैवल किया हूँ मैं। पापा डिफेंस में थे तो मैं अलग अलग स्टेट घूमा, अलग अलग कल्चर देखा, अलग अलग टाइप के पीपल देखा, जो कि ट्रेन में, बसेस में, स्टॉप पे, हर जगह, रोड पे भी चलता हूँ तो हाँ मैं जी। नेवर, मतलब कि मैं ऑब्जर्व करना नहीं छोड़ता हाँ जी। पीपल्स को। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, जब मेरे सामने कोई हेल्पलेस बंदा होता है, मीन्स जिसको हेल्प चाहिए होती है, कोई हाँ ऐसी जी। मुश्किल से गुजर रहा होता है, कोई भी हाँ, बंदा हाँ। होता है, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, आप एक बार मार्केट में जाओगे। तो मैं इतना कैपेबल होना चाहता हूँ कि उसको फाइनेंस या कभी उसको किसी चीज़ की मदद ज़रूरत पड़े, तो और मैं वो मेरे को दिखे या मिले, मैं उतना कैपेबल बन जाऊँ कि मैं वो उसकी मदद कर सकूँ। बहुत बहुत ही
बढ़िया, उम्दा और दिलदार विज़न है ये। एंड इसके साथ मतलब मेरे पास ऑनेस्टली अब क्वेश्चंस बचे नहीं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ओके। बट अ, अभी इस बारे में कुछ और बातें करते हैं, ठीक है? सो ठीक। इससे पहले कि अब हम बिल्कुल पॉडकास्ट एंड करेंगे, ठीक है? हम्म। तो कुछ-कुछ चीज़ें और हैं ओके, गो जो अहेड। कि मुझे बात करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल, जी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज़ योर बिज़नेस मंत्र जो कि आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहोगे? सो आप क्या ओके, ओके, टिप्स आई गो दोगे? अहेड। ट्राई, फेल, एनालाइज, एडजस्ट, रिपीट। वाह! ट्राई, फेल, एनालाइज, एडजस्ट, रिपीट। ओके, लेट मी रिपीट इट। ट्राई, फेल, फेल, एनालाइज़, एडजस्ट, एडजस्ट, रिपीट रिपीट। एंड रिपीट। दैट्स नाइस। तो मतलब ये आपकी कंप्लीट टिप है। या। ऑनेस्टली कुछ बचता नहीं वैसे, बट काफ़ी अच्छी टिप है। नाइस। कुछ और ऐड करना चाहोगे आप? इतना काफी है। इवन मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ अपने ऑडियंस के लिए, हाँ जी, कि वे भी इस कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर जो सुन रहे होंगे पॉडकास्ट या आपके चैनल को कर देख रहे होंगे, सुन रहे हाँ होंगे, जी, तो कहीं ना कहीं उनका भी सेम फील्ड में इंटरेस्ट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप। और हाँ जी, उनको भी चीज़ कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी, चाहे वे स्कूल में हो, चाहे वे कॉलेज में हो, चाहे वे कॉलेज से बाहर आ चुके हो, एक तो आपके पास लाइफ बहुत बड़ी है अभी। कल ही वैसे, बड़ी कहो या फिर इंसान तो आजकल रोड पार करते करते पता नहीं कब चल बसे, भगवान जाने। लेकिन हाँ जी। जब तक हो तब तक ऐसे जियो कि मतलब कि आपका बोलते हैं ना, एक थॉट्स है शायद स्टीव जॉब्स का, कि हर दिन आखिरी दिन की तरह जीना चाहिए, ऐसे किसी बड़े ने कहा है, मैंने बिल्कुल। सुना है। तो स्टीव जॉब्स ने कहा है, लिव एवरी डे लाइक इट्स योर लास्ट डे। या, तो वही चीज़, उस चीज़ को अपनी इसमें डाल लीजिए ज़िंदगी में। और तीसरी दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, कि चलो मैं तो कॉलेज ज्वाइन किया, काफ़ी बैकग्राउंड भी ठीक था, इधर उधर मूवमेंट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलता रहा फैमिली से। तो अगर आपको नहीं मिलता तो ऐसी चीज़ नहीं कि आप नहीं कर सकते। आप गूगल पे सर्च करो कि आप फाइनेंस कैसे सीख सकते हो, आप मार्केटिंग कैसे सीख सकते हो, आपको आइडियाज़ कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, वो आप चीज़ जाओ, आप जो मर्जी फ्री में। तो उन चीज़ों को वहाँ से सीखने की कोशिश करो, वो बहुत ज़रूरी है। राइट, राइट, राइट। बहुत प्यारी टिप्स हैं यार आपकी, ऑनेस्टली। तो अब मैं एक और चीज़ पूछूँगा, ठीक जी। है? सो दिस इज़ वन थिंग जो हम करते हैं बिफोर हमारा पॉडकास्ट खत्म हो, ओके। कि मैं अपने गेस्ट से पूछता हूँ दैट इफ यू कुड रिकमेंड मी अनदर एंटरप्रेन्योर जिसको आपको लगता है कि बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है, जिनको हम शो पे बुला के उनकी जर्नी के बारे में बात कर सकते हैं। तो आप किसको रिकमेंड करना चाहोगे? मैं रिकमेंड तो करना चाहूँगा कि अपना द चेन्नई एंजल्स के सीईओ, उनका ओके, नाम मैं जस्ट कनंदस, ऐसे एक्चुअली साउथर्न नेम है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है मेरे को। एक मिनट, कोई बात नहीं। एक मिनट, आई विल जस्ट अपडेट यू ऑन व्हाट्सएप, ओके? आई जस्ट No लिव worries, no टेलिंग। worries, no worries. But thank you so much for recommending such an honorary person to me. ओके, And I hope that you'll help me connect with him so that डेफिनेटली, I आई can bring him सजेस्ट यू। on the show ओके, ओके। and talk to him. So अब जो मेरी बहुत देर से कहने की इच्छा थी मैं वो कहना चाहता हूँ जी। कि guys, जितने लोग भी सुन रहे हो इस वक्त, आई डोंट नो कितने लोग सुन रहे हैं इसको, एंड मेरे को कुछ बातें बोलनी है जो मैं बहुत दिल से बोलने वाला हूँ इस वक्त, कि गो अहेड। ऑनेस्टली मैंने जब राहुल को पिच किया था, आई हैड नो आइडिया राहुल कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं। मेरे लिए भी जर्नी उतनी नहीं होती है जितना मैं इंसान से पहली बार मिलता हूँ। सो इट्स लाइक माय फर्स्ट मीटिंग विद राहुल। और राहुल को सुन के मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है, बिकॉज़ जिस तरीके से राहुल अपने बैकग्राउंड से आए हैं, आई एम नॉट सेइंग उनका कुछ बैकग्राउंड खराब है, बट जहाँ से राहुल आए एंड जिस तरीके से राहुल ने अपना माइंडसेट डेवलप किया है, 11th-12th में एक एपिसोड देख के, बिल्कुल मैं ये बोल सकता हूँ कि एक उस एज पे मेरे ख्याल से एक एपिसोड बहुत होता है एक माइंडसेट डेवलप करने के लिए कि नहीं, मुझे यही करना है। काफ़ी सही बोला। एंड उसके साथ-साथ राहुल
ने इंजीनियरिंग करी एक विजन के साथ। रा- राहुल ने बिल्कुल सही बात बोली है कि हम लोग इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं जस्ट बिकॉज हमारे घर वाले बोलते हैं एंड प्रेशर मामा होता बोल है, देते किसी हैं। मामा चाचा ताऊ बोलते हैं, उसके सुन के हम इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, बट राहुल ने एक विजन के साथ इंजीनियरिंग ज्वाइन करी है और राहुल उस विजन पे आगे चल रहे हैं एंड इनका मोटिव हमेशा उस विजन पे खेलते रहने का रहा है। एंड उसके साथ साथ जिस शिद्दत से, मैं लिटरली शिद्दत बोलूंगा, राहुल फेल होते गए 3 स्टार्टअप फेल, उसके बावजूद उन फेलियर्स की वजह से इनको अपॉर्चुनिटी मिली कि इस कंपनी में ये को फाउंडर बन सके। आई मीन कुछ बचता नहीं है उसके बाद। उसके साथ साथ अगर लाइक ऑनेस्टली राहुल, ये मेरे साथ पहला पॉडकास्ट एपिसोड होगा जिस जो कि मेजरली हिंदी में हुआ है। आई वुड से कि अ, यार, लैंग्वेज बैरियर तक राहुल ने क्रॉस किया हुआ है। एक्चुअली राहुल देखिए, ने लैंग्वेज बैरियर भी। लैंग्वेज का एक पॉइंट मैं उठाना चाहूंगा। जस्ट मेरे हाँ को भी जी। माइंड मिस्टेक हो गया कि हाँ जी। ये तो बोलते हैं ना कि अंग्रेजों ने हम पे राज किया हिस्ट्री में, इसलिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंग्लिश बोली जाती है। हम भी इंग्लिश कहीं ना कहीं ऑफिशियली लेवल पे इंग्लिश प्रेफर करते हैं। इंग्लिश कोई बोल दे तो उसकी इमेज अलग ही 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे अंग्रेजों ने राज किया, ऐसे अगर हिस्ट्री में हम राज कर देते तो आज शायद पूरे मीन्स दुनिया हिंदी पे गर्व कर रही होती। तो ये तो एक बोलते हैं ना कम्युनिकेशन का एक पाथ है जिसके थ्रू इंसान कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको इतनी बड़ी नजरिए से नहीं देखना चाहिए मेरे एस्पेक्ट में। राइट, आप बोल रहे हो, राइट, राइट। सामने वाला सुन रहा है, उसको समझ में आ रहा है, और आप क्या बोल रहे हो उसको समझ में आ रहा है, तो कोई क्या फर्क पड़ता है ब्रो। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगा कि राहुल ने सारे बैरियर्स क्रॉस किए, लैंग्वेज बैरियर क्रॉस किया एंड राहुल ने सीखना नहीं छोड़ा है। He has been learning all this while. So there's like a lot that you can pick up from his journey, learn and implement in your life. And आई गेस रेंटिंग प्लानट के बारे में तो हमने बहुत कम बात करी है जिस हिसाब से वो बिजनेस चल रहा है, बट हाँ, राहुल के पास आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे हैं। जिस हिसाब से राहुल ने एक प्रॉब्लम को डील किया है, आई मीन जिस हिसाब से राहुल ने सोल्यूशन भी लाके दिया, मेरे को लगा राहुल ने ऐसे चुटकी बजा के सोल्यूशन लाके दे दिया होगा। तो थैंक यू सो मच ब्रदर। तो बहुत अच्छी बात है, बट कुडोज टू राहुल। थैंक यू एंड ब्रदर। एंड इवन वन मोर थिंग आई हाँ मेंशन जी, करना चाहूंगा, लाइक यू सार्थक लिटरली डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। क्योंकि इस थैंक यू चीज़ों सो पे, मच राहुल। इस मोमेंट पे अगर मेरे टाइम पे इतना पॉडकास्ट वगैरह पता होता तो मैं शायद कभी सुनना नहीं भूलता, नहीं छोड़ता। तो आप जो अपना एक इनिशिएटिव लिए हो, जो आप इनिशिएटिव लिए हो इस फील्ड में, वो राइट, लिटरली थैंक यू सो मच, लिटरली गुड लक, ग्रेट जॉब। thank you so much Rahul, thank you so much. So with that said, guys, this was Rahul Nain with us, the co-founder of Renting Planet, and I wish him all the best from the bottom of my heart for his journey. थैंक And यू। I wish that he grows well, grows huge lots of success, and the vision with which he's walking ahead, that he grows into a unicorn company and he's able to help all those people he wants to help out there. And everything happens in a positive direction. Best of luck, Rahul, and I look forward to seeing you very, very soon. डेफिनेटली ब्रदर, आई एम हैप्पी Thank you टू। so much, Rahul, for being on the show. Thank you so much. See you soon. Bye bye. बाय बाय ब्रदर। I hope that you're able to take back something insightful from this podcast and apply it in your life to be a better version of yourself and add to your Dhandoni Soch. If you know someone whom you think should feature on my podcast and has a very inspiring entrepreneurial journey, then do drop me a DM on my Instagram, SarthakVarshNey. Sarthak Varshney. Yeah, that's me. I'm the founder of SV Clicks, and SV Clicks is the producer of this show. You can find me on Facebook or LinkedIn as well with the same name. If you're willing to listen to more of such unheard, inspiring stories of the entrepreneurs, then don't forget to follow us by pressing that follow button on your podcast screen.
Thank you for being such an amazing audience. Keep learning, keep growing. We'll be back soon. See ya.